ویلکم بیک. سعودی عرب کی حمایت اور مدد سے ہماری معاشی حالات بہتر ہوئے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ریاست میں سعودی وزراء سے ملاقات میں گفتگو. وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پرائم منسٹر آف ایکشن قرار دے دیا. بولے آپ کی کارکردگی اور کام کرنے کی رفتار سے آگاہ ہیں. جلد سرمایہ کاروں کا وفد پاکستان آئے گا. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا مشن ہمارا مشن ہے. سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ہماری ترجیح ہے. سعودی وزیر خزانہ محمد آل جادان نے کہا سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع تلاش کرے گا. پاکستان کی ترقی سعودی عرب کی ترقی ہے. سعودی وزیر صنعت کا زراعت، معدنیات، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں دلچسپی کا اظہار. سعودی وزیر صنعت بندر بن ابراہیم نے کہا کہ سعودی نجی کمپنیاں بہت جلد پاکستان کا دورہ کریں گی. نجی شعبوں کے درمیان اشتراک ہماری اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم نے پاکستان کا ہر مشکل میں ساتھ دینے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا. ملاقاتیں عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عالمی عدم مساوات ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب میں اقتصادی فورم مباحثے میں گفتگو. کہا کورونا میں عدم مساوات کھل کر سامنے آیا. شہباز شریف نے پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے اقدامات پر بل گیٹس کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا. کہا بل گیٹس فاؤنڈیشن ہر سال پاکستان میں 50 ملین بچوں کو پولیو ویکسین فراہم کر رہی ہے. وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد کی بھی تعریف. کہا کنگ سلمان فاؤنڈیشن دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بہترین کام کر رہی ہے. First and foremost problem is global inequities. Look at COVID. It exposed these imbalances, gaps hugely. In 2022, we experienced the worst climate change floods. We had to invest hundreds of billions of rupees to rehabilitate people. But when it came to the question of seeking funds from abroad, those were loans, expensive loans. Can a developing country afford that? King Salman Foundation is doing a terrific job providing all sort of help to suffering humanity. My deep appreciation to His Majesty on polio. Pakistan is a great beneficiary of Bill Gates Foundation. It has done a remarkable job. 50 million vaccines every year. If I did not acknowledge Bill Gates' generosity here, I will not be fair to myself and fair to him. Despite 2022 floods, with great difficulty, we're able to vaccine children. This cooperation goes one day soon. We'll be over the hump. وزیر اعظم شہباز شریف سے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیوا کی ملاقات. ایم ڈی آئی ایم ایف نے نئے پروگرام کے اقتصادی فریم ورک کا بتایا اور کہا کہ پاکستان اصلاحات سے ہی میکرو اکنامک استحکام حاصل کر سکتا ہے. اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ حکومت پاکستانی معیشت کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے پرعزم ہے. وزیر خزانہ کو سخت مالی نظم و ضبط یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعظم نے ایم ڈی آئی ایم ایف کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی. یاد رہے ایس بی اے کے تحت 1 ارب 10 کروڑ ڈالر قسط کے لیے آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس پیر کو ہوگا. پاکستان کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے. کئی ملک مشکلات سے دوچار ہیں. ایم ڈی آئی ایم ایف کا ورلڈ اکنامک فورم کی خصوصی سیشن سے خطاب. کہا کم آمدنی والے ملکوں کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے. کورونا کے دوران کم آمدنی والے ملکوں کی معیشت زیادہ متاثر ہوئی. زیادہ مہنگائی والے ممالک میں مہنگائی اور مالی خسارے پر قابو پانا ترجیح ہے. Advanced economies, the United States is doing well. Within the emerging market economies, I mentioned India, Indonesia, actually I look at Malaysia. These are countries that are doing well. But then we have a number of countries that are facing significant difficulties. Just to mention some, like Pakistan, Egypt is doing now better. Toughest part of all, low-income countries falling dramatically behind. $3.3 trillion. This is how much the world lost because of the pandemic. In this loss, disproportionately, the low-income countries are most severely impacted. Immediate priorities, there are 3. 1, get inflation in countries where it is still above target, down to target. Second, focus on rebuilding fiscal buffers. And 3, let's find ways to cooperate more. Because fragmentation in the world economy is certainly bad for the prospects for growth.
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि गैर दस्तावेजी शोबा हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। 10 खरब का टैक्स मार्केट में ज़ेर गर्दिश है। नकद रकम के इस्तेमाल के बजाय ऑनलाइन के फ़रोग देने की कोशिश है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत ने मुस्तहिक ख़वातीन की मदद के लिए नकद रकम का इंतज़ाम किया है। ख़वातीन चाहती हैं कि उन्हें रकम डिजिटल वॉलेट के ज़रिए दी जाए। Macroeconomic variables are moving in the right direction. Certainly we need to bring in more macroeconomic stability and more permanence in it as we go forward. It's almost, half of the economy is in that undocumented sector. With the help of, get onto the digital solutions, which we can actually start moving towards sort of documenting the economy through digital solutions. This Friday, I signed an agreement with McKinsey. They are going to come in and actually help us with end-to-end digitalization of our tax authority. A huge priority for us as we go forward. IMF के पास जाना एतराफ़ है, हम सिर्फ नाकाम ही नहीं नालायक भी हैं। गारंटी से कहता हूँ मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी तो कर्ज 100 खरब तक पहुँच जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जिस मुल्क में सियासी इंतशार हो वहाँ की मईशत कमज़ोर होती है। जब तक सियासी मसाइल हल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जाना इस बात का इतराफ है कि हम नाकाम हो गए। ना सिर्फ नाकाम हुए बल्कि हम नालायक भी हैं। 24 टाइम हम ICU में जा रहे हैं। वहां से आपकी मर्ज का हल नहीं निकलेगा। इस मुल्क में सियासी इंतशार होगा, मईशत भी कमजोर होगी। एक ही हल है, यहाँ पर माल बनाएं और एक्सपोर्ट कर सकें। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आती है वो कुछ इंपोर्ट रिप्लेसमेंट कर देगी, कुछ बिजली के मसाइल हल कर देगी, कुछ सड़कें बन जाएंगी, लेकिन जब उनकी रीपेमेंट का वक्त आता है वो मामला भी डॉलरों में अदा करना पड़ता है। आपका कर्जा 13 में 9.5 खरब रुपया था, 18 में 16.5 खरब हो गया और आज 39 खरब है। ये हुकूमत 5 साल पूरी करेगी, मैं आपको यकीन से कहता हूँ 100 खरब के करीब पहुंच जाए। अगर अपने सियासी मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे ये मामलात हल नहीं होंगे। किसी खाम ख्याली में मत रहें। इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपए का मकरूज है। बतौर कौम हमने आमदन कम और अखराजात ज्यादा कर लिए। साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब आयशा गौस पाशा का तकरीब से खिताब, कहा इनकम बढ़ाने के लिए बरामदात में इजाफा करना होगा। जब अदायगी डॉलर में करनी हो तो डॉलर छाप नहीं सकते, कमाने होते हैं। माजी के मुकाबले में पिछले 12 साल में दुगना कर्ज लिया गया। पाकिस्तानी इस वक्त 280,000 रुपीज इंडेटेड है। हम एज अ नेशन वी हैव बीन लिविंग बियॉन्ड आवर मीन। जितना हम इनकम जनरेट करते नहीं है उससे ज्यादा हम अखराजात कर लेते हैं। आपके पास जो इनफ्लोज ऑफ डॉलर्स हैं वो इतने नहीं हैं जितने आपको आउटफ्लो ऑफ डॉलर करना है, तो फिर डॉलर तो नहीं छाप सकते। आपको डॉलर चाहिए होते हैं, वो कहाँ से आप लाएंगे? उसकी वजह से आपको IMF और बाकी मल्टीलैटरल्स के पास जाना पड़ता है। जो पिछले 12 सालों में किया है हमने, डेट को डबल कर दिया और अब ऑन एन एवरेज $5.5 बिलियन एक साल में डेट ले रहे हैं। IMF की प्रोजेक्शंस के हिसाब से अगले 3 साल में पाकिस्तान को तकरीबन $60 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री फौरी तौर पर होगी। इसहाक डार मुल्क के दूसरे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। इससे पहले 2012 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में चौधरी परवेज़ इलाही डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इसहाक डार को डेप्यूटी वज़ीर आज़म का ओहदा देने से उनके इख्तियार नहीं बढ़ेंगे। डेप्यूटी वज़ीर आज़म का कोई इख्तियार नहीं, ये नुमाइशी ओहदा है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं डेप्यूटी वज़ीर आज़म के ओहदे का कोई आइनी और कानूनी जवाज़ नहीं है। शायद अना की तस्कीन या इज़्ज़त तकरीम के लिए ओहदा दिया गया हो। कोई अगर डेप्यूटी वज़ीर आज़म की तैनाती चैलेंज करना चाहे तो कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर के कोई इख्तियारात नहीं है जी, ये सिर्फ एक नुमाइशी किस्म का एक लेबल है जो आप किसी को दे दें, उसकी इज्जत तकरीम में इजाफा अगर होता है इससे तो हो जाए, लेकिन इसका आइन और कानून में कोई वजूद नहीं है। ना इस लेबल के इस उन्वान के दे देने से उनके कोई इख्तियारात में इजाफा होगा। नुमाइशी सा एक लेबल है, किसी अना की तस्कीन के लिए दिया गया है या कोई और वजह है। इस फैसले के ऊपर कोई कानूनी चारा जोई की जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, कोई करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि कानून यही है कि जिस चीज़ का इख्तियार कानून ने नहीं दिया वो आप नहीं कर सकते।
جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی مہم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ جسٹس بابر ستار کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر مہم حدقآمیز اور بے بنیاد ہے۔ جسٹس بابر ستار کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی شہریت نہیں۔ سوشل میڈیا مہم پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اعلامیے میں کہا گیا کہ جسٹس بابر ستار نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون جبکہ ہارورڈ لا اسکول سے گریجویشن کی۔ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل فرد کی وجہ سے جسٹس بابر ستار کو امریکہ کا مستقل ریزیڈنسی کارڈ ملا تھا۔ 2005 میں وہ امریکی نوکری چھوڑ کر پاکستان آ گئے اور تب سے یہاں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے گرین کارڈ سے متعلق اس وقت کے چیف جسٹس کو بھی آگاہ کیا تھا۔ گرین کارڈ سے ویزا کے بغیر امریکہ کا سفر کرنے کی اجازت ہوتی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے جسٹس بابر ستار کے تمام اثاثے ان کو ورثے میں ملے یا اپنی وکالت کے دوران بنائے۔ پاکستان اور امریکہ میں جائیدادیں ہیں، اثاثے ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کر رکھے ہیں، کسی بھی کاروبار کے انتظامی امور میں شامل نہیں۔ بطور جج ایسا کوئی کیس نہیں سنا جس میں ان کی فیملی کا کوئی مفاد ہو۔ جج تعیناتی سے پہلے جوڈیشل کمیشن نے ان کی اسکروٹنی کی۔ سوشل میڈیا پر جسٹس بابر ستار کے خلاف ہتک اور بے بنیاد مہم چلائی جا رہی ہے۔ جسٹس بابر ستار، ان کی اہلیہ اور بچوں کے سفری دستاویزات سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ آئینی پیکج زیر غور ہے۔ ماہر قانون عرفان قادری کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کہا مجھے آئینی ترمیم کا پیکج آتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ آئینی پیکج آنے والے وقت کی ضرورت ہے۔ ملک اداروں میں تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اداروں کے آئینی حدود کو آئینی ترمیم کے ذریعے مزید واضح کرنا پڑے گا۔ پیکج اٹ از آن دا کارڈ 8-10 سال سے پریڈکٹ کیا ہوا تھا اور ایگزیکٹلی اسی طرح چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمارا ملک مکمل نہیں ہو سکتا کہ یہ کنٹینیو کرے اس طرح کی چیزیں۔ ٹینشنز کو ختم کرنے کے لیے کنٹورز ہیں ہماری جورسڈکشن کے، ان کو زیادہ کلیریفائی کرنا پڑے گا تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، اور وہ پیکج ضرورت ہے اس وقت آنے والے وقت کی تاکہ پاکستان میں ایکویلیبریم قائم ہو اداروں کے درمیان۔ دبئی میں دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹ کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ اگلے 10 سال میں دبئی ایئرپورٹ کے تمام آپریشنز المکتوم ایئرپورٹ منتقل ہو جائیں گے۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے سوشل میڈیا پر دبئی ایئرپورٹ کی منتقلی کا منصوبہ شیئر کر دیا۔ المکتوم ایئرپورٹ پر نئے مسافر ٹرمینلز کے ڈیزائن کی منظوری دی گئی ہے۔ نئے ٹرمینل کی لاگت 128 ارب درہم ہوگی۔ ہوائی اڈے پر ایک ساتھ 5 رن ویز پر فلائٹ آپریشن ہو سکے گا، جبکہ 400 جہاز بیک وقت مسافروں کو سروس فراہم کریں گے۔ سالانہ 26 کروڑ مسافر ایئرپورٹ استعمال کر سکیں گے۔ المکتوم ایئرپورٹ کے اطراف نیا شہر دبئی ساؤتھ بسایا جائے گا، جس میں 10 لاکھ افراد کے لیے رہائشی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ ٹویٹر پر لکھا پی ٹی آئی رہنما اپنے قائدین سے پوچھ کر بتائیں وہ کیا چاہتے ہیں، انہیں این او سی مل جائے تو ہم مذاکرات کے لیے حاضر ہیں۔ پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن دو ٹوک پالیسی بیان دے چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر شبلی فراز نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی مشروط حمایت کرتے ہوئے کہا تھا تمام سٹیک ہولڈر سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، جس پر رؤف حسن نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے مذاکرات کو مسترد کر دیا تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے پہلے بھی اس طرح کی باتیں کی، اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ دھمکیوں سے کسی کو فائدہ ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ عدالتی معاملات عدالتوں میں اور سیاسی معاملات کو گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ نے کہا ہے عمران خان کو رہا کیا جائے وگرنہ ہم اسلام آ کے قبضہ کر لیں گے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے پہلے بھی کی اور اس کا جو نتیجہ نکلا ہے آج وہ سب کے سامنے ہے۔ طاقت کی دھمکیاں دینے سے نہ کبھی کسی کو فائدہ ہوا ہے نہ ہی ہوگا۔ مئی 2023 میں 14 مئی والے انتخابات کے حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی فائنل نتیجے پہ پہنچ گئی تھی اور معاملات طے ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی آمرانہ رویہ اختیار نہ کیا جاتا تو آج شاید پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ مختلف ہوتی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پی ٹی آئی میں واپسی کا امکان، بانی پی ٹی آئی نے گرین سگنل دے دیا۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ آئندہ چند روز میں فواد چودھری کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات متوقع ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے قریبی وکیل رہنما کے ذریعے فواد چودھری کو ملاقات کا پیغام پہنچایا ہے۔ فواد چودھری کو پارٹی میں اہم ذمہ داری سونپے جانے کا امکان ہے۔ پارٹی قیادت نے بھی فواد چودھری کی واپسی کی حمایت کر دی ہے۔
पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कौम परस्त हैं। मुस्लिम लीग नून ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया, वो पंजाब की कौम परस्त जमात है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर महंगल का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी पर बुरा वक्त आता है तो वो डोमिसाइल और मकामी गैर मकामी का नारा लगाती है। पीटीआई के अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक लेने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई वाला बयान भी साबित करता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की कौम परस्त जमात है। की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कौम परस्त हैं। जाग पंजाबी जाग का नारा लगाने वाली पंजाब नेशनलिस्ट पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुरे वक्त आते हैं तो लोकल डोमिसाइल और मकामी और गैर मकामी की बात करते हैं, वो पार्टी भी सिंध की नेशनलिस्ट पार्टी है। पीटीआई अमीन गंडापुरी का रिसेंटली जो बयान आया था उससे क्या हम ये नतीजा अख्ज़ नहीं कर सकते कि वो खैबर पख्तूनख्वा की एक कौम परस्त पार्टी बन गई है। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत के बावजूद किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। पंजाब भर के किसान सड़कों पर आ गए, कहते हैं हुकूमत तो माफिया की तरह रेट लगा रही है, हमारी गंदम ना खरीदी गई तो कहाँ जाएंगे। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को कल तक का अल्टीमेटम दे दिया। खराब हो रही है, क्यों गवर्नमेंट अभी इसका रेट लगा रही है, वो समझे कि माफिया की तरह। किसान की कमर टूट गई है, रात भी तबाही के दहाने तक पहुंच चुकी है। 29 अप्रैल को लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने धरना होगा। मौसम के बाद हुकूमत भी किसानों का इम्तिहान लेने लगी। वजीर आजम की हिदायत के बावजूद गंदम की खरीदारी शुरू न की जा सकी, काश्तकार रुल गए। सरकारी सतह पर गंदम न खरीदने के खिलाफ बहावल नगर में किसानों ने महकमा ज़राअत और मुतल्लिका अफसर का अलामती जनाजा पढ़ा दिया। ढोल की थाप पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। आरिफ वाला में काश्तकारों ने बारदाना की फी एकड़ मिकदार बढ़ाने का मुतालबा किया। गंदम है ना, मतलब वो गवर्नमेंट तो खरीद नहीं रही, जो बारदाना वो पास्को वाले दे रहे हैं वो भी जो है ना माफिया ज़राअत है उनको मिल रहा है। मंडी में अगर गंदम आई हुई है, गंदम खरीद नहीं रहा है कोई भी। अगर गवर्नमेंट गंदम खरीदेगी नहीं और आड़ती रेट नहीं देगा तो जिम्मेदार क्या करेगा। सियालकोट, हाफजाबाद, उकाड़ा, डस्का समेत मुख्तलिफ शहरों में भी किसान सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन का कहना था अगर हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी तो किसान कहाँ जाएंगे। इसका दाना काला हो रहा है, पाकिस्तान से अपील है कोई हल निकाले। कड़ू काट रहे हैं, नेरी बदल डिग पई है, बहुत नुकसान हो गया। किसानों का नुकसान हो रहा है, मेहरबानी करके गंदम का रेट ज्यादा से ज्यादा किया। मलिकवाल में किसान के घर में बारदाने की मुंतजिर गंदम बारिश से मुतासिर होने की वीडियो वायरल हो गई। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को गंदम खरीदारी के लिए पीर तक की डेडलाइन दी है। उनका कहना है वजीर आजम की जानिब से पास्को का हदफ बढ़ाना खुशाइंद है। उम्मीद है पंजाब हुकूमत भी इसी तर्ज का ऐलान करेगी। बिला ज़रूरत गंदम दरामद करके निजी शोबे को नवाजे जाने का इंकशाफ। गलत फैसले से $1 अरब का ज़र मुबादला ज़ाया हुआ। नई फसल आने के बाद गंदम की खरीदारी न होने से काश्तकार रुल गए। ज़राए का कहना है वाफर गंदम होने के बावजूद नेशनल फूड सिक्योरिटी ने 35,87,000 टन गंदम बाहर से मंगवाने की इजाज़त मांगी। ECC ने गंदम दरामद करने की बाकायदा मंजूरी दी। निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई, जबकि 1 अप्रैल 2024 तक 43 लाख टन गंदम हुकूमत के पास मौजूद थी। मार्च में सिंध में नई फसल आने से गंदम दरामद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब हुकूमत किसानों से मज़ीद गंदम नहीं खरीद पा रही। वज़ीर आज़म ने गंदम के मामले पर स्पेशल कमेटी कायम कर दी। 3 रोज़ बाद रिपोर्ट आएगी। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारा ने लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मामला काबीना में हल किया जाएगा। हमने इस पर कुछ 6 मीटिंग्स की हैं, मुख्तलिफ एंगल से देखे। एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और 3 दिन बाद वो रिपोर्ट पेश करेंगी। काबीना में उसका मामला हल किया जाएगा। उन्होंने किसानों की मुश्किलात को सामने रखते हुए जो टारगेट था उसको भी बढ़ाया। पंजाब हुकूमत किसानों का मुआशी कत्लेआम कर रही है। हुकूमत पंजाब किसानों से मुकर्ररा निर्खों पर गंदम खरीदारी से मुकर गई। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं KP ने 6 लाख टन गंदम 3900 रुपये फी मन खरीदने का ऐलान किया है। 3 लाख टन गंदम खरीदारी के लिए मकामी किसानों को तरजीह देंगे। अगर हदफ पूरा ना हुआ तो पंजाब का किसान KP हुकूमत को अपनी गंदम बेच सकता है। पंजाब हुकूमत सिर्फ तस्वीर वाले राशन की नुमाइश कर रही है। और अब शामिल करेंगे वेदर न्यूज़। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। सवात और बाजोड़ में छत्ते गिरने से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक और 9 ज़ख्मी। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गईं।
सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का बताना है कि हलाक दहशतगर्दों में फ़हीम नवाज उर्फ गन्नापुरी और मोहसिन नवाज शामिल हैं। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाकाखेज मवाद बरामद हुआ। मुकाबले में मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुखबिर सेशन जज वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह का ताहाल कोई सुराग ना मिला। DI खान टांक रोड से सेशन जज के अगवा का मुकदमा पेशावर के थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। तहकीकात के लिए पुलिस की खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। हुकाम के मुताबिक कमेटी में CTD, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम शामिल होंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक जज की बाजियाबी के लिए CTD में अलग टीम तहकीकात कर रही है। जज की गाड़ी को रिकवर कर लिया गया है और जायवकू के रूट की हासिल करदा CCTV पर काम जारी है। DI खान विजन के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि कई मुश्तबा अफराद से तफ्तीश भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ नामालूम मुल्जिमान ने जज शाकिरुल्लाह मरवत को गेरा मोहब्बत अड्डा से अगवा करके उनकी गाड़ी को आग लगा दी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर के इलाके शिमला पहाड़ी में वाक़े नादरा सेंटर का दौरा किया। शहरियों से बात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने फौरी नोटिस लिया और अमले से बासपुरस भी की। उनका कहना था शहरियों की शिकायत का जल्द अजाला किया जाएगा। आपके मसाइल हल करना कोई एहसान नहीं, ये आपका हक और हमारी जिम्मेदारी है। नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी को मिसाली सेंटर बनाएंगे। कौमी टीम के लिए कोचिंग पैनल का ऐलान कर दिया गया। पहली बार टेस्ट टीम और वाइट बॉल टीम के लिए अलग अलग कोचेस मुकर्रर किए गए हैं। जनूबी अफ्रीका के गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल और ऑस्ट्रेलिया के जेसन गैलेस्पी रेड बॉल टीम हेड कोच होंगे। साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद तीनों फॉर्मेट में असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। भारतीय टीम ने 2011 का वर्ल्ड कप गैरी क्रिस्टन की कोचिंग में जीता था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं टीम के लिए जो बेहतर होगा वही किया जाएगा। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के असिस्टेंट कोच होंगे। एहसानुल्लाह की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, अगर कोई जिम्मेदार हुआ तो एक्शन होगा। अजहर महमूद बोले टीम की फिटनेस अहम है। को हम वाइट बॉल का जेसन ग्लिप्सी को हम रेड बॉल का हेड कोच ला रहे हैं। दोनों फॉर्मेट्स के लिए असिस्टेंट कोच हैं वो अजहर महमूद आ रहे हैं। इन कोचेस को लाने का मकसद ये है कि टीम को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें अवेलेबल करके दें। क्रिकेट बोर्ड का काम पैसे इकट्ठे करना नहीं है, ये पैसे क्रिकेट के ऊपर लगाए। एहसानुल्लाह का मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। मेरे पास शिकायत आई कि उसकी ट्रीटमेंट PCB की तरफ से मिस हैंडल, जो भी रिपोर्ट आएगी और उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, गाइडेंस की कमी है कि हम अपने प्लेयर्स को किस तरह ग्रूम करें। पुश करेंगे कि इनका फिटनेस लेवल उस लेवल पे आ जाए जहां इस वक्त ऑस्ट्रेलिया खड़ा है। वो जो माइंडसेट है कि आउट होने का डर है, फियर है, उसको निकालना है। लड़कों को कॉन्फिडेंस देंगे और वर्ल्ड कप में ये सेम मिस्टेक्स ना। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए AHY न्यूज़।